Hello students, I am Dipti and you are watching my channel Academy for Excellence. Student, today we will learn a topic which is some functions and their graph. This is subtopic of relations and function NCERT class 11 maths book. Okay, so some functions and their graphs. कुछ functions and उसके graph के बारे में पढ़ेंगे. Then our first function is identity function. Identity function. So, what is identity function? You know what is identity function? So, यहाँ देखते हैं क्या है ये. Suppose let करते हैं हम लोग. Suppose करते हैं R, let R be the set of real number. What is R? R is the set of real number. Okay, real number. Then a mapping F which is going from R to R. R means what? Real number. अगर कोई हमारा फंक्शन है जो रियल नंबर टू रियल नंबर जा रहा है by y which is equal to fx, which is equal to x for all x belongs to real number. This is identity function. Okay, समझिए. कोई फंक्शन है, पहले हम सेट लेते हैं R जो कि रियल नंबर का एक सेट है, उसमें एक फंक्शन जो है वो R to R जा रहा है, f maps to R by y which is equal to fx and fx equal to what? X. This is identity function, means we put all the values of y, then we get values of x. Suppose if we put x equal to 1, then f1 is equal to also 1, which is equal to y. If we put x equal to 2, then we get f of 2, that is 2, which is also equal to y. Suppose we put x equal to 0, then also f of 0 is equal to 0. That means अगर हम कोई भी वैल्यू x का पुट कर रहे हैं तो हमें सेम वैल्यू y का ही मिल रहा है. ये होता है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन. ओके, सो अब प्लॉट करेंगे हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ क्या होता है और इसके रेंज क्या होते हैं, इसके डोमेन्स क्या होते हैं, ये अभी हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो प्लॉट करते हैं इसके ग्राफ को. दिस इज x एक्सिस, this is y axis, this is y dash, this is x dash. You know this is origin 1 1, this is suppose 1 2 3 4, ऐसा. इधर माइनस -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4. You know how to locate any point in graph. You already studied in class 10th. Okay, 1 2, this is positive axis of y, so on. So if we put value x equal to 1, x equal to 1, then we get y equal to also 1. So this point is here. So if x equal to 2, y will be also 2. This is, then so on 3. अगर x पुट करते हैं तो y भी 3 मिलेगा. अगर x हम 4 पुट करते हैं तो हमें y भी क्या मिलेगा? 4. ओके, अगर हम आते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, तो भी हमारा कुछ ऐसा ही होता है. नेगेटिव एक्सिस की तरफ अगर आते हैं, अगर x हम -1 ले तो y भी -1 आएगा. ओके, सो पॉइंट इज हियर. यस, अगर x -2 ले तो y भी हमें -2 मिलेगा. ऐसे ही बढ़ता जाएगा हमारा. तो आप देख रहे हो कैसा ग्राफ हमें मिल रहा है. दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू. ये तो एक रफ स्केच हमने बनाया, आप रफ पेपर पे बनाओगे तो बहुत अच्छा बनेगा. तो ये जो ग्राफ हमारा है आइडेंटिटी फंक्शन का, वो कैसा है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. देन वी फाइंड डोमेन and range.
तो ग्राफ में हम यहाँ देख रहे हैं और वैल्यूज पुट कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते हो व्हाट इज डोमेन, डोमेन ऑल पॉसिबल इनपुट्स दैट मेक्स द फंक्शन रियल एंड डिफाइन। तो डोमेन ऐसा इनपुट वैल्यू होता है जो पूरे फंक्शन को डिफाइन करता है और रियल बनाता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, एक्स के सारे वैल्यूज पर हमारा जो ये फंक्शन है वो डिफाइन है, कहीं अनडिफाइन हो ही नहीं रहा। तो हमारा जो डोमेन हो जाएगा वो ऑल रियल नंबर होगा। और अगर बात करें रेंज की, तो हम वैसे ही देख रहे हैं कि जो हमारा x का वैल्यू है वही हमारा y का वैल्यू सेम। तो यहाँ रेंज भी क्या हो जाएगा, ऑल रियल वैल्यूज। मीन्स हमारा डोमेन और रेंज इस आइडेंटिटी फंक्शन में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो क्लियर है। सो दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट आई थिंक you will understand it. Okay, so next function is our next function is constant function. So now we will study about constant function. So our next function is constant function. So what is constant function? Constant name से आप समझो constant, कोई भी एक constant value. Okay, so suppose कर रहे कि let R be the set of real number. Here f maps to R by y equal to fx and which is equal to c. c means any constant. ये जो fx equal to c है ये है फंक्शन constant function. Okay, fx equal to c, c is any constant. fx equal to 3, 4, 5 anything, any constant. So okay, प्लॉट करते हैं इसके ग्राफ को और देखते हैं कि इसका डोमेन और इसका रेंज क्या होता है। तो कुछ ऐसा हमारा कांस्टेंट फंक्शन सपोज कर रहे हैं कि fx इक्वल टू कोई कांस्टेंट ले रहे हैं हम लोग 3 सपोज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ग्राफ बनाते हैं fx इक्वल टू 3 का। ओके, एंड fx क्या होता है, y ही तो होता है। तो अगर हम कुछ भी x का वैल्यू पुट करें, आप x का वैल्यू कुछ भी पुट करो, एनीथिंग, लेकिन आपका जो y है, ठीक है, वो क्या आएगा, हमेशा कांस्टेंट है। यानी कि आप x कुछ भी पुट कर रहे हो, fx विल बी कांस्टेंट ओनली। ओके, सो अगर आप कुछ भी पुट कर रहे हो x के जगह पर 1, 2, 3, 4 माइनस नेगेटिव नंबर्स, 0 पॉजिटिव नंबर्स, द रिजल्टेंट विल बी ओनली कांस्टेंट नंबर c. c मींस एनी नंबर जो आपके क्वेश्चन में दिया रहे। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, इधर 1, 2, 3 ऐसा होता है, -1, -2, -3, -4, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज y डैश, दिस इज x डैश। तो कैसा बनेगा इसका ग्राफ fx इक्वल टू 3 का। x कुछ भी आप पुट करो, x आपने 0 पुट किया, y क्या आएगा, 3 आएगा। दैट मींस ये 1, 2, 3 ऐसा कुछ है। तो x अगर आपने 1 पुट किया, सपोज x हमने 0 पुट किया, तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, y 3 आ रहा है। x हमने 1 पुट किया तो भी हमारा 3 आएगा। x अगर हमने 2 पुट किया तो भी हमारा y 3 आएगा। अगर x हमने 4 पुट किया तो भी y हमारा 3 आएगा। सॉरी, 3 पर तो 3 आएगा, 4 पर ऐसे ही 4 आएगा, कुछ ऐसा ही। देख रहे हो ग्राफ कैसा बन रहा है, कुछ ऐसा। कोई भी नंबर आप पुट करोगे x में, आपका जो y है ना वो हमेशा 3 ही होगा, दिस टाइप। and this line is parallel to x axis. That means अगर fx equal to any constant का आप ग्राफ बनाते हो तो वो हमेशा x axis के पैरेलल होगा, हमेशा। fx equal to 2 है तो 2 पर बनेगा वो लाइन which is parallel to x axis। अगर fx equal to -1 है तो ये -1 पर बन जाएगा फिर, ठीक है, बट ये ऑलवेज पैरेलल टू x axis रहेगा। ओके, सो क्या होगा इसका डोमेन, डोमेन एंड रेंज। यू नो अबाउट डोमेन, डोमेन क्या होता है, तो x का हर वो इनपुट वैल्यू, यानी कि x का हर वो वैल्यू जिससे हमारा फंक्शन डिफाइंड हो, ठीक है, रियल एंड डिफाइंड हो। तो डोमेन ही हमारा क्या हो जाएगा, x में तो कुछ भी पुट कर रहे हैं, फाइनली रिजल्ट क्या मिल रहा है हमें, y क्या मिल रहा है, कांस्टेंट मिल रहा है। तो हमारा जो डोमेन है वो रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी रियल नंबर को पुट करे, कोई भी रियल, आपको पता है कि रियल के अंदर रैशनल सारे नंबर्स आते हैं, तो कोई भी रियल नंबर अगर आप x की जगह पुट करते हो, आपको जो fx वो हमेशा कांस्टेंट ही मिलता है, तो रिजल्ट हमेशा कांस्टेंट मिलता है। दैट्स वाई जो रेंज है, रेंज क्या होता है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो रिजल्ट वो होता है रेंज हमारा। यहाँ पर रेंज क्या हो जाएगा, यहाँ रेंज हो जाएगा
कांस्टेंट फंक्शन, जो भी हमारा कांस्टेंट होगा। जैसे यहाँ पर इस फंक्शन के लिए डोमेन तो हो जाएगा r रियल नंबर, एंड जो हमारा कांस्टेंट जो हमारा रेंज होगा वो हो जाएगा 3। ओके, सो इन दिस फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन में जो हमारा डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है एंड रेंज जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ओके, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन होगा वो होगा मॉड्यूलस फंक्शन। ओके, सो चलिए इसके बाद मॉड्यूलस फंक्शन देखते हैं हम लोग। सो स्टूडेंट्स, मॉड्यूलस फंक्शन देखने के पहले हम सिग्नम फंक्शन को देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद मॉड्यूलस फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, मॉड्यूलस फंक्शन देखने के पहले हम देखते हैं सिग्नम फंक्शन को। ओके, एक एक करके हम सारे फंक्शंस पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। सो सिग्नम फंक्शन क्या होता है? तो R जो है वो रियल नंबर का एक सेट हम माने हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, एंड F मैप्स कर रहा है R टू R, दैट मींस रियल नंबर टू रियल नंबर बाय fx। ये जो सिग्नम फंक्शन होता है, ये फंक्शन कुछ इस तरीके से होता है कि जो fx होता है ना, वो x1 इफ x ग्रेटर देन 0, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होगा, ऑलवेज। अगर x इक्वल टू 0 आप पुट कर रहे हो तो हमेशा उसका वैल्यू 0 आएगा। अगर आप x लेस देन 0, दैट मींस x इक्वल टू आप जितने भी नेगेटिव नंबर है वो अगर आप पुट करते हो तो आपका जो वैल्यू वो हमेशा -1 आएगा। इन तीनों के अलावा कुछ भी वैल्यू नहीं आएगा अगर आप x का कुछ भी वैल्यू पुट कर रहे हो तो। फिर जब ये हम बनाते हैं इसका ग्राफ, कैसा बनेगा ग्राफ? तो आपको पता है कि अगर आप x1 इक्वल टू 1 पुट करोगे तो fx क्या आएगा? आपको पता है कि x अगर 1 है, 1 मीन्स ग्रेटर देन 0 वाला नंबर है ये, तो 1 आएगा वैल्यू। अगर x इक्वल टू आप 2 पुट करते हो तो भी ये वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि x के सारे वैल्यू जो 0 से बड़े होते हैं ना, वो सबका सब वैल्यू 1 देता है इस फंक्शन के अकॉर्डिंग। अगर आपने x इक्वल टू 0 पुट किया, दैट मीन्स f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। अगर आपने x का वैल्यू -1 पुट किया, दैट मींस f ऑफ -1 इज इक्वल टू -1। एंड अगर आपने x का वैल्यू -2 पुट किया, दैट मींस आल्सो f ऑफ -2 इज इक्वल टू -1। मींस आप x के सारे पॉसिबल वैल्यूज पुट कर लो, मींस क्या, आपका जो इनपुट वैल्यूज है आप कुछ भी पुट कर लो, आपका जो रिजल्ट है वो हमेशा 1, 0, -1, बस इतना ही आएगा इस फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? 0, this is x dash, y, this is y dash। ओके, कुछ रफली प्लॉट करते ग्राफ कैसा बनना चाहिए? देन व्हेन वी पुट x इक्वल टू 1, सपोज x इक्वल टू 0, देन इट इज 0। ओके, सही है। x इक्वल टू 1, f1 इज 1, x इक्वल टू 1, सपोज 1 यहाँ है x में, तो जो f1 है, जो y है, y क्या है? वो भी 1 है, एंड वो 1 कहाँ है? ये 1 है, कुछ ऐसा। इफ x पुट कर रहे 2, x इज 2, देन y इक्वल टू ऑल्सो 1। यहाँ 0 पे 0, ठीक है, x 0, ये 0। अगर हमने x इक्वल टू 3 पुट किया तब भी हमें क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा, दिस इज 1। बट जब 0 पुट करते तो 0 मिलता है, इसका मतलब है कि यहाँ 1 पर तो कुछ भी वैल्यू नहीं आएगा। ये शो कर रहा है कि कुछ भी वैल्यू नहीं आएगा 1 पर, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेगेटिव नंबर लेते हैं -1, तो -1 मिलता है। मीन्स अगर -1 हमने लिया तो हमें क्या मिला? -1, मीन्स यहाँ -1 है, तो कुछ ये नंबर। फिर -2 भी लेते हैं हम तो फिर हमें -1 ही मिलता है। -3 भी हम लेंगे तो -1 ही। मीन्स ये जो है ना, कुछ ऐसा चलता जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये नंबर ये जाएगा तो, बट यहाँ पर जब हम 0 पुट कर रहे हैं तो वैल्यू हमारा 0 आ रहा है। यहाँ जो होगा वो 1, ये जो पार्ट है ना वो ऐसे खुला हुआ होगा, ये क्लोज में नहीं आएगा, मतलब ये एक्सक्लूडेड है। ये जो 1 है वो एक्सक्लूडेड है इससे, क्योंकि जब हमने 1 पुट किया -1 तो 1 आया, -1 आया, -2 तो भी -1 आया, -3 हमने पुट किया तो भी -1 आया। लेकिन जब 0 हमने पुट किया तो 0 आया वैल्यू, ये यहाँ है।
तो यहाँ ये वाली वैल्यू जो है ना वो एक्सक्लूडेड है, ये इसके अंदर आएगी नहीं। ओके, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा और ये जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। हम इसमें इस 1 को इंक्लूड, यहाँ पर जो ये पॉइंट है 0 1, जैसे x में 0 और y में 1 है, ये जो हमारा ये जो पॉइंट है वो 0 और 1 है, ये इंक्लूड नहीं हो रहा है इस ग्राफिकल लाइन में। ओके, ये बात क्लियर है। इसलिए हमने जो है ऐसे सर्कुलर बना दिया ताकि आपको ये समझ में आए कि ये जो वैल्यू है 0 1, दिस इज 0 -1, ये इंक्लूडेड नहीं है, ये इस ग्राफ में नहीं आ रहा, ये एक्सक्लूडेड है। ओके, सो अब बारी आती है डोमेन एंड रेंज की। डोमेन रेंज, सो डोमेन क्या होगा, हमने तो सारे वैल्यू पुट कर दिए, कुछ भी तो पुट कर रहे हैं ना और रियल नंबर्स में, तो हमारा डोमेन हो जाएगा रियल नंबर। एंड व्हाट अबाउट रेंज, रेंज क्या, जो भी रिजल्ट मिलता है एट द एंड, क्या मिल रहा है फाइनली 1 0 -1, इसके अलावा कुछ मिल ही नहीं रहा है। दैट्स वाई हमारा डोमेन ऑल रियल नंबर हो जाएंगे और जो रेंज है वो हो जाएगा 1 0 एंड -1। ओके, आई थिंक दिस विल बी क्लियर। ओके, so our next function is greatest integer function. So now we will study about greatest integer function. Okay, so now greatest function, sorry, greatest integer function, greatest integer function. So let R be the set of real number and function f maps to R by y equal to fx. This is greatest integer function. This is, ये एक ऐसा फंक्शन, फंक्शन मीन्स व्हाट, फंक्शन मीन्स आप एक ऐसी मशीन समझ लो जिसमें आप कुछ इनपुट डालते हो, प्रोसेस करता है, कुछ हमें आउटपुट मिलता है, तो वही होता है फंक्शन। देन ये जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये क्या करता है, इसका क्या काम है, ये क्या करता है कि अगर आप कोई भी वैल्यूज डालो, सपोज की कोई वैल्यू से मान लेते हैं हमने x इक्वल टू 1 रखा। ओके, तो ये जो y है विच इज fx है ना, ये हमें क्या मिलेगा 1, ये तो 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर हम x की जगह 1.5 रखते हैं तो हमें f 1.5 क्या मिलता है पता है, ये जब निकलता है इससे तो 1, समझ रहे हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि कोई भी नंबर लाइन पे आ जाओ 1 2 3, तो यहां अगर पॉइंट वाले जितने भी नंबर्स अगर आप लिखते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब उसके लेफ्ट वाला, जैसे आपने लिखा 0.2, तो 0.2 का जो लेफ्ट है दैट मींस 0, ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस 0.2 का। यानी कि अगर आप x के जगह पर 0.2 आपने रखा, यानी कि f 0.2 इज इक्वल टू 0.2 और ये आ जाएगा इसका वैल्यू 0। अगर आप रखते हो 0.9 दैट मीन्स f 0.9 इज इक्वल टू, इस मशीन के अंदर गया 0.9 एंड मिला क्या हमें, हमें मिलेगा क्या, टेल मी 0.9 जब हम रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, यहां मिलेगा ऑब्वियसली 0 मिलेगा। ओके, लेकिन जैसे x इक्वल टू हम रखेंगे 1 तो ये क्या मिलेगा 1, तो हम कह सकते हैं कि ये जो fx होता है ना कुछ इस तरीके से होता है कि ये -1 मिलेगा वैल्यू कब, जब हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा एंड लेस देन 0 होगा। हमें वैल्यू मिलेगा 0 कब, जब हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा एंड लेस देन 1 होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 तो 1 आएगा ना, जो कि 0 के इक्वल तो होगा नहीं। हमें मिलेगा 1 जब हमारा x हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा एंड लेस देन 2 होगा। हमें फंक्शन का वैल्यू मिलेगा 2 कब, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3, क्योंकि 2.9
का भी वैल्यू हमें 2 ही मिलेगा, लेकिन जैसे हम 3 में जाएंगे हमारा जो वैल्यू है वो 3 हो जाएगा। समझ रहे हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? तो वैसे ग्राफ हम यहाँ प्लॉट करें तो कैसे बनेगा? अगर हम वैल्यू सपोज करते हैं 0 लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0, तो उसका वैल्यू भी 0 ही आएगा, नो डाउट। अगर हम 0.1 ले तो जस्ट इसके बगल, तो भी वैल्यू आएगा इसका 0, मीन्स x में अगर हम ये ले रहे हैं तो y हमारा कुछ ऐसा। अगर x में 0.1 तो y में वैल्यू 0, ये सॉरी ऊपर तो जाएगा ही नहीं, ये कुछ ऐसा बनेगा, बट यहां पर खुला हुआ होगा क्योंकि 1 आते ही ये 1 जब आएगा ना तो ये इसके अंदर नहीं आएगा, एक्सक्लूड कर जाएगा। अब x का वैल्यू लेते हैं, अगर सपोज 2 लिया हमने, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू दिस इज 2, तो y क्या मिलेगा? ऑब्वियसली 2 इज हियर। अगर x हमने 1 लिया तो y क्या मिलेगा? ऑब्वियसली 1, दिस इज 1, दिस इज 2। x का वैल्यू अगर हमने 1 पॉइंट भी कुछ लिया, 1 पॉइंट तब तक, तो ये भी वैल्यू 1 मिलेगा, 1.3 तो भी 1 मिलेगा, 1.9 तो भी 1 मिलेगा, ऐसा। बट जैसे x का वैल्यू 2 लेंगे ना, हमें वैल्यू 2 मिलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऐसा खाली। तो ये जो है ना, ये कुछ ऐसा ही बनता है ग्राफ इसका, मीन्स ये जो है वो एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जाता है ऐसा, ठीक है। यहाँ मिलेगा कुछ ऐसा। अगर हम -1 रखेंगे तो -1 माइनस ये 0 पर तो नहीं आएगा ऐसा, क्योंकि x जब 0 रखेंगे तो वो 0 मिलता है, ठीक है। ये सॉरी ये कुछ -1 यहाँ रहेगा तो ऐसा, फिर ये 2 वाला पोर्शन यहाँ तक। समझ में आ रहा है? आप प्लॉट करो खुद से, तब आराम से हो जाएगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। एक बार आप खुद से बनाकर देखो, आपको आराम से समझ में आ जाएगा और बन भी जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब लास्ट बचा है हमारा मॉड्यूलस फंक्शन, उसे हम लोग देखते हैं। Now our last function is modulus function. There are so many functions, okay? लेकिन हम लोग रिलेशनल फंक्शन वाले कुछ रिलेशनल फंक्शन का जो चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी चैप्टर 2 एनसीईआरटी बुक 11th क्लास, ओके। तो इसमें कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं, वो मैं अभी डील कर रही हूँ। बाकी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, रैशनल फंक्शन हो गए आपके, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गए, देयर आर सो मेनी फंक्शंस बट दैट आर इम्पॉर्टेंट विच वी विल स्टडी हियर, ओके। तो ये हमारा मॉडुलस फंक्शन हो गया। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है कि कोई जो फंक्शन होता है ना वो कुछ ऐसा, मॉडुलस का ये सिंबल है कुछ ऐसा, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आप कोई भी तरह का नंबर डालो, नेगेटिव डालो, पॉजिटिव डालो, 0 डालो, हमेशा आपको जो प्रोडक्ट देगा, रिजल्ट देगा, वो हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप x = 0 पुट करो तो ये जो fx है 0, ये तो 0 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। x = अगर आप 1 पुट करो, f(1) which is 1 which is also 1। लेकिन अगर आप x = -1 पुट करते हो तो भी जो हमारा रिजल्ट होगा ना, सॉरी गेसिंग, ये भी होगा 1। अब x के वैल्यू अगर आपने -2 पुट किया तो भी जो f(-2) होगा वो हो जाएगा 2। दैट मीन्स आप क्या देखो, आप जितने भी इनपुट्स डाल रहे हो, रियल नंबर जो आप डाल रहे हो सारे के सारे, ठीक है, ठीक है, वो तो ठीक है, बट जो रिजल्ट हमारा आ रहा है इस फंक्शन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट। मॉड्यूलस फंक्शन का यही तो प्रॉपर्टी है कि ये सारे वैल्यूज को, पॉजिटिव वाले तो पॉजिटिव में रहते ही है, 0 तो ठीक है, बट अगर नेगेटिव नंबर भी अगर आप डालते हो मॉड्यूलस करते हो उसका, ठीक है, तो वो भी हमें पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है। तो इसे ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ आपको सोच कर देखो, ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि जैसा भी बने बट नेगेटिव नहीं जाएगा। ग्राफ जो हमारा वो नेगेटिव जाएगा ही नहीं, क्योंकि रिजल्ट हमारा पॉजिटिव ही आएगा। तो नेगेटिव जो हमारा है वाई एक्सिस, वो जाने का तो सवाल ही नहीं उठता है ना। चलो x अगर आप 0 पुट कर रहे हो 0 मिल रहा है, x अगर 1 पुट कर रहे हो तो आपको 1 मिल रहा है, x अगर
2 पुट कर रहे हो तो भी आपको 2 मिल रहा है, x अगर 3 पुट कर रहे हो तो 3 मिल रहा है, कुछ ऐसा है ना। अगर -1 पुट किया जा रहा है तो भी क्या मिल रहा है, +1। अगर -2 पुट कर रहे हैं तो भी +2, -3 पुट कर रहे हैं तो भी +3। तो ग्राफ नीचे तो जाएगा ही नहीं, फिर ग्राफ हमारा कुछ ऐसा वी शेप में बनेगा, वी शेप में ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब डोमेन रेंज क्या होगा, डोमेन हो जाएंगे ऑल रियल नंबर, क्योंकि हम तो कुछ भी पुट कर रहे हैं ना इसमें। और जो रेंज हो जाएगा, क्या होगा रेंज, आप बताओगे इसका कि रेंज क्या होगा। पहली बात तो नेगेटिव वाले नंबर्स तो होंगे ही नहीं इसमें, तो रेंज इसका क्या हो जाएगा, इसका रेंज आ जाएगा 0 to इंफिनिटी। हमने यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट दिया है, दैट मीन्स 0 इंक्लूडेड है। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन थे जिसे पढ़ना बहुत जरूरी था। आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में जब आएंगे तो हम लोग बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। ओके, साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, उसका डोमेन रेंज क्या होता है, साइन कॉस टेन, जितने भी 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सबके बारे में पढ़ेंगे 1 by 1 हम लोग, ठीक है। और सबके डोमेन रेंज को फाइंड करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू।